like this. Capacitors को अगर potential difference मिल जाए कहीं से, they get charged and then you can always discharge them as well. So simplest capacitor जो है in an electric circuit consists of two metal plates with an air gap between them which acts as insulator, and such a capacitor is called parallel plate capacitor. और symbol मैंने already आपको draw करके दे दिया. So this is a simple two parallel plates connected to the either ends of the battery or a power supply. So to store energy, these plates must be given equal and opposite charge. So basically एक side इसकी positive side पे connect होगी और दूसरी negative side पे. ये नहीं हो सकता कि आप दो बैटरीज लेके एक प्लेट को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दें और दूसरी को भी पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें. दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प. दिस इज नॉट गोइंग टू स्टोर एनर्जी at all. So in order to store energy in the capacitor, you need to connect into two opposite terminals so that the charge stored on each of the plate is equal and opposite. And sometimes this is not a discussion of your A2 syllabus. ये आगे university level पे या IBDP के अंदर इसकी discussion है. So I'm just going to write a single line that if you we can always add an insulator material like wood or any other plastic or any other material which is insulator between the plates, and it actually helps in increasing the performance of a capacitor. But this is not the discussion in our A2 syllabus. So just I'm writing a single statement that sometimes an insulating material called dielectric can be placed between the parallel plates. Now you can copy it down and I will give you 2 minutes, write it down, then we move to the next page. If you have any doubts or any confusions, please do let me know. सर डाइलेक्ट्रिक क्या सॉलिड और लिक्विड दोनों हो सकते हैं? Yes, it can be a dielectric material. Yes. जी बच्चों आगे चलें. So I believe जी आप सर. लोग. जी जी Okay. हो गया. Okay, so basically we have connected two ammeters, positive side and the negative side. अब मेरी ये जो explanation है ये सुन लें, उसके बाद इसको देख लीजिएगा. So basically what happens is कि जो electrons हैं they flow from the negative side of the plate to the negative side of the capacitor. So एक plate A मैंने declare किया और एक B, और there are two emitters A1 and A2. So when the electrons travel, one electron let's say deposit on the plate A, सामने वाली plate है B, उसमें जो electrons हैं वो they are going to be repelled by the electrons from the A and they are going to move to the positive side. वैसे भी जो positive side होगी, it is going to attract the electron. तो अगर A पे एक इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुआ है तो B पे बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन लीव कर जाएगा. So we can say that there is a positive charge on plate B. Similarly, another time after एक इलेक्ट्रॉन और डिपॉजिट हो जाएगा नेगेटिव प्लेट से and another charge is going to leave from B, and slowly and gradually एक टाइम आएगा कि जो प्लेट A है it is going to have a very large number of electrons and the total charge on this plate would be minus Q, and the charge deposit on the other plate is going to be positive, and both ammeters A1 and A2 are going to give the same reading.
तो शुरू में कैपेसिटर क्योंकि अनचार्ज होता है तो शुरू में एमीटर का करंट जो है दैट इज वेरी वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज रीडिंग आती है एमीटर्स की, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली बिकॉज द चार्ज कीप डिपॉजिटिंग, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन होती है, इट फेसेस रिपल्शन बिकॉज ऑलरेडी ए प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होता है, सो बेसिकली उस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन फर्दर उस तरह डिपॉजिट नहीं हो पाता या उसका फ्लो स्लो हो जाता है, सो करंट स्टार्ट्स टू डिक्रीज। और एक टाइम आता है जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, और उस टाइम पे हम कहते हैं कैपेसिटर इज फुली चार्ज एंड द रीडिंग्स ऑन द एमीटर इज जीरो। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड थ्रू द डिस्क्रिप्शन। When a capacitor is connected to a battery, the negative terminal of supply or battery pushes the electron onto the one plate, plate A. Electrons on plate B will be repelled because of the excess negative charge on plate A, so they move to the negative terminal of the supply. Thus, plate A has positive charge and plate B have equal positive charge or AP negative charge. So initially at time t is equal to 0, both ammeters A1 and A2 will give identical readings. So as more electrons get deposited on plate A, incoming electrons would experience repulsive force and the reading on ammeter gradually reduces, right? So you can just note it down. If you have any questions related to this, please do let me know. जी बच्चों लिख लिया?
सर आगे पढ़ा दूं? चलें जी. So, okay. So until after a time t, potential difference across the capacitor becomes exactly equal to the EMF of the supply. So no current will flow in the circuit and the capacitor is said to be fully charged. So each plate will have equal and opposite charge, obviously. So note that total charge on a capacitor is zero. क्योंकि एक plate पे positive Q charge होगा, दूसरे पे negative Q charge होगा. So total charge is said to be zero. And the supply and battery does work in separating the charges. So this work is stored as electrical energy, and while discharging the capacitor, this energy can be claimed. So basically battery जो है वो जो चार्जेस को सेपरेट कर रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के ऊपर चार्जेस को अलग अलग कर रही है. सो चार्जेस को अलग अलग कर रही है, मींस द बैटरी इज डूइंग वर्क, और वो वर्क जो है दैट इज एक्चुअली देयर इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी. सो इसको बाद में आप वापस भी ले सकते हैं. व्हेन यू डिस्चार्ज द कैपेसिटर, जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो आप इसको वापस क्लेम भी कर सकते हैं इस एनर्जी को, एंड यू कैन गेट इट बैक एज वेल. सो कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाता है, इसको याद रखें, तो करंट सर्किट में बिल्कुल जीरो हो जाता है. नो करंट कैन फ्लो थ्रू इट. तो कोई बल्ब लगाओ सर्किट में, कोई भी चीज लगी हो, बंद हो जाएगी. तो शुरू में अगर आपने लैंप लगाया हुआ है तो लैंप ऑन होगा, और जैसे ही स्लोली एंड ग्रेजुअली लैंप की ब्राइटनेस कम होगी, क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, और एक टाइम आएगा जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, जितनी भी बैटरी की ईएमएफ है वो सारी की सारी कैपेसिटर के क्रॉस अपीयर हो जाएगी, एंड लैंप विल हैव जीरो यू कैन से वोल्टेज अक्रॉस इट, एंड इट इज गोइंग टू टर्न ऑफ. ठीक है. अब रमीन आपको कौन सा पेज चाहिए? ये वाला पेज चाहिए? तो यू कैन टेक पिक्चर्स इफ यू वांट. आपका मैसेज आया, सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस पेज. देन दिस इज द सेकंड पेज. दिस इज द फर्स्ट पेज. नाउ द सेकंड पेज. वांट इट? ओके, नाउ दिस इज द पेज. इसको आप लिख लें और फिर मुझे बता दें. अच्छा, टोटल चार्ज अगर आपसे पूछा जाए टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज जीरो होगा, क्योंकि एक प्लेट पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो टोटल सम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. आई थिंक आई शुड मूव ऑन. लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? Okay, I'm moving on. So note that whenever we say that charge stored by a capacitor, it means total charge Q on one plate. जैसे sometime exam में statement आती है, question में पूछते हैं, what do you mean by charge stored on a capacitor? अब total charge तो zero होता है, so what you are going to say? We are going to say that charge stored by a capacitor, that means total charge Q on one of the plates is going to be zero. So ये मैंने यहाँ पे दो एक किसको आधी शो हो रही है, किसको आधी नहीं शो हो रही? मुझे तो यहाँ कंप्यूटर पे पूरी नजर आ रही है. सबको सेम इशू है बच्चों? सही हो गया सर जी. पहले आप चलें जी. Now when we say that the charge is
whenever it is said that charge stored by a capacitor, it means that total charge on the plate जो होगा वो उस Q की हम बात कर रहे हैं basically, that it means that total charge Q on one of the plates, right? So अब हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी है, एक एमीटर है और दो वोल्ट मीटर्स लगे हुए हैं V1 and V2. So शुरू में जब टाइम हमारे पास 0 होगा, when the switch is T is equal to 0, switch is turned on, the lamp जो होगा उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा that is V1. और फिर आधा शोर आधा एक मिनट मैं इसको रीसेट करता हूँ. अब तो ठीक हो गया मेरा ख्याल है. जी सर सही हो गया. Okay, so at time T is equal to 0, switch is turned on और the lamp is on, और जो हमारे पास V1 होगा वो किसके इक्वल होगा? EMF के इक्वल होगा. The potential difference across the lamp is equal to the, जो भी बात मैं बता रहा था, जितनी बैटरी की वोल्टेज है वो उसके क्रॉस अपीयर होगी. आई एम इग्नोरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को आप इग्नोर कर देते हैं तो लेट्स से कि EMF ऑफ द बैटरी इज 5 वोल्ट्स, सो जो लैंप होगा सारे के सारे वोल्टेज उसके क्रॉस अपीयर होंगे. एंड अभी कैपेसिटर अनचार्ज है और एमीटर के ऊपर मैक्सिमम रीडिंग होगी. बट एज द टाइम प्रोग्रेसेस जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कैपेसिटर वो इंक्रीज होगा, तो जो वोल्टमीटर V2 की रीडिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी स्लोली एंड ग्रेजुअली. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो में हो नहीं सकता कि बैटरी अगर 5 वोल्ट सप्लाई करे तो दोनों लैंप और उसकी अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 5 से बढ़ जाए, वो 20 हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता. बेसिकली अगर एक V1 V2 बढ़ रही है तो V1 हैज टू बी रिड्यूस्ड. तो V2 जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और V1 रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी और करंट भी ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू डिक्रीज. सो जो लैंप है इसकी ब्राइटनेस कम होना शुरू हो जाएगी. और उसके बाद एक टाइम आएगा जब V2 जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर है, इट वुड बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू द EMF ऑफ द बैटरी. और उस टाइम पे जो वोल्ट मीटर V1 की रीडिंग है लैंप के अक्रॉस जो वोल्टेज है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 एंड लैंप इज गोइंग टू बी कंप्लीटली टर्न ऑफ. और जो एमीटर रीडिंग है वो क्या हो जाएगी? वो भी 0 हो जाएगी. सो एट दिस टाइम वी से दैट कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड. इसको लिख लें फिर आगे चलते हैं. तो इस पेज पे जो पहला पॉइंट है फिर से एक्सप्लेन कर दें, ये जो पहला ग्रीन में लिखा हुआ है. Note that whenever it is said charge stored by a capacitor, it means total charge on one of the plates. वैसे अगर पेपर में हमें पता है कि एक प्लेट पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? प्लस क्यू माइनस क्यू 0. तो अगर ये पूछा जाए व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर, वो 0 होगा. लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट डू वी मीन बाय चार्ज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर, तो हम ये कहते हैं when we say that capacitor stores charge, it means charge stored on one of the plates. तो वो हमारा पॉजिटिव क्यू या नेगेटिव क्यू, क्योंकि आगे जितने भी फॉर्मूलाज आएंगे ना उसमें क्यू आएगा. तो क्यू का क्या मतलब है? चार्ज स्टोर ऑन वन ऑफ द प्लेट्स. टोटल चार्ज की हम बात नहीं करते, हम ये बताते हैं कि एक प्लेट पे कितना चार्ज है वो स्टोर हुआ है. तो ये मतलब है इस लाइन का. नोट दैट whenever it is said that charge stored by a capacitor, it means total charge Q on one of the plates. Clear बेटा? ठीक है सर, क्लियर.
ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया। ओके, तो ये मेरे पास एक सर्किट है, एक बैटरी जी लगी हुई है और एक रेजिस्टर लगा हुआ है और एक टू वे स्विच लगा हुआ है, ये जो ब्लू वाला स्विच है। या तो आप इसको एसी पे अटैच कर सकते हैं या इसको एबी पे अटैच कर सकते हैं, और बीच में हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है, राइट। तो अब आप कहते हैं इनिशियली द स्विच इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी, तो बेसिकली रेजिस्टर नहीं लगा हुआ, पॉजिटिव प्लेट से बैटरी के कैपेसिटर पे चार्ज डिपॉजिट होगा प्लस क्यू, और जो नेगेटिव प्लेट है उस पर नेगेटिव क्यू डिपॉजिट होगा। और जैसे भी हमने बात की कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। तो ये जो पहला ग्राफ है, जो ब्लैक वाला ग्राफ है, इट रिप्रेजेंट्स चार्जिंग का ग्राफ। तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम आई नॉट से शुरू होते होते जैसे जैसे टाइम आगे प्रोग्रेस कर रहा है, करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है एंड आई नॉट जो है ये कम होता जा रहा है। तो ये चार्जिंग का ग्राफ है। अच्छा, अब आप जब डिस्चार्जिंग करेंगे, डिस्चार्जिंग में क्या होगा कि आप जो कनेक्शन है वो ए से बी की तरफ कर देंगे। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, हम चाहते हैं कि इसको डिस्चार्ज करें या इसको यूटिलाइज करें जो भी एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है। अगर आप पहले वाली डायरेक्शन देखें तो पहले करंट फ्लो कर रहा था, अगर आप उसको देखें सर्किट के लूप के अंदर, तो डायरेक्शन वाज एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे ही हमने इसको दूसरे साइड पे कनेक्ट किया है ए और बी के बिटवीन, तो अगर आप देखें तो वहां पे जो ये जो हमारे पास फ्लो हो रहा है वो चार्जेस का, दैट इज इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन करंट को पॉजिटिव कहा है तो नीचे वाले को नेगेटिव कहना पड़ेगा। तो डिस्चार्जिंग का ग्राफ नेगेटिव आई नॉट से शुरू होगा और स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑब्वियसली रेजिस्टर है वो एनर्जी डिसिपेट करेगा, तो करंट की वैल्यू जो है वो भी कम होती जाएगी। सो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लिख लिया सर जी। ओके, चलें जी, हम आते हैं नेक्स्ट 3C के ऊपर, सॉरी ये यहाँ पे आगे। अब आते हैं जी मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस। आपको पता है कि रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेशियो ऑफ वोल्टेज टू सर करंट। फिर बिल्कुल स्टक हो गया, सबके लिए स्टार्ट हो गया। स्टक हो गया। Yes, एक sir. मिनट, लेट मी रीसेट इट। ओके, आई थिंक इट इज फाइन नाउ, राइट? जी सर। ओके, सो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है? रेशियो ऑफ वोल्टेज टू, यू कैन से वोल्टेज टू वोल्टेज टू करंट रेशियो को रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो जो कैपेसिटर है इसकी डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज यू डिपॉजिट ऑन द प्लेट इज डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर आप बड़ी बैटरी लगा दें तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो
दे कैन इजीली यू कैन से वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। कम वोल्टेज वाली बैटरी लगाएंगे तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू सफर, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके पास एनर्जी नहीं होगी, दे आर नॉट गोइंग टू बी डिपॉजिटेड। अब क्यू चार्ज जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप 10,000 वोल्ट्स लगा दें और ज्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए। हर एक कैपेसिटर की अपनी लिमिट है। हो सकता है कि कैपेसिटर के 5 वोल्ट पे काम करता हो, कि 6 वोल्ट पे करता हो, तो अगर 1 वोल्ट बैटरी उसको लगाएंगे तो चार्ज कम स्टोर होगा, 2 वोल्ट बैटरी लगाएंगे तो चार्ज ज्यादा स्टोर होगा, एंड सो फोर्थ। तो जिस तरह वो एक बिलावल ने स्टेटमेंट भी दी थी कि ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, बिल्कुल इसी तरह इफ यू हैव अ लार्जर potential difference, obviously you are going to have a larger charge stored on the plates. So amount of charge deposited on the plates of the capacitor depends on the potential difference across it. So Q is proportional to V. और अगर आप proportionality का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे C आता है, जिसको कहा जाता है capacitance of a capacitor, and this is basically defined as charge stored per unit potential difference। कि जितनी वोल्टेज Q अपॉन V का रेशो जो है इससे कहा जाता है कैपेसिटेंस। जैसे कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज टू करंट था रेशो, रेजिस्टेंस के इक्वल, तो बिल्कुल कैपेसिटर्स में द रेशो ऑफ चार्ज स्टोर ऑन वन ऑफ द प्लेट्स डिवाइडेड बाय V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q यहाँ पे कौन सा चार्ज है? अगेन जैसा मैंने बताया, Q टोटल चार्ज नहीं है, Q क्या चीज है? चार्ज स्टोर ऑन वन ऑफ द प्लेट्स है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी स्टोर्ड ऑन वन प्लेट पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका यूनिट क्या होगा? कूलम पर वोल्ट्स। और कूलम पर वोल्ट्स को हम क्या कहते हैं? फेरेड भी कहते हैं। अब पेपर में फेरेड की डेफिनेशन भी आती है। तो बेसिकली वी से दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विल हैव 1 farad if charge stored on one of the plates is 1 coulomb and the potential difference across its plates is 1 volts। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ लें यहाँ तक। सर मेरा ड्रॉप हो गया था, एक सेकंड पिछली स्लाइड दिखा दें, स्क्रीनशॉट लूंगा। पिछली स्लाइड कौन से वाली? पिछली स्लाइड तो बहुत पीछे है, क्योंकि बीच में कुछ क्वेश्चंस करवा रहा था। ये वाली स्लाइड आपकी रहती थी या ये वाली? सॉरी, यही वाली होगी। जी सर, बस ठीक है सर। सर ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलना जी। चलना जी। जो यहाँ पे कैपेसिटर्स के बारे में लिख रहे थे, जल्दी से लिख लें फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, स्क्रीन स्ट्रक तो नहीं होगी? होगी है। मुझे नजर आ गई थी, मेरे अपने स्क्रीन पे भी स्टक हो गई थी, इसलिए मैंने पूछा। सही होगी थी सर। बस ये क्या करूं, ये पीर मुहिब जब बोलता है ना स्टक हो गई, तो फिर वो स्क्रीन स्टक हो जाती है पक्की पक्की। चलना जी, लिख लें बच्चों जल्दी से इसको। चलें आगे, लिख लिया बच्चों? सर 1 मिनट दे दें। वो काजिम है क्लास में? हाँ काजिम, मैग्नेटिज्म समझ आया या ये आप बोलेंगे कि मुझे सारा समझ नहीं आया, दोबारा समझा दूं? देखें, बात ये कि एक दफा जब नाम हो जाए उसमें फिर टाइम लगता है ना वापस आने में।
अब आपका क्या ख्याल है कि आप ये चैप्टर दोबारा पढ़ना चाहिए मैग्नेटिज्म का, या समझ आ गया? यानी कि खुद पढ़ा नहीं है अभी तक। हाँ जी, किसी और को लगता हो कि मैग्नेटिज्म नहीं समझ आया, बिल्कुल शुरू से ही नहीं समझ आया, तो जैसे जैन नूर है, एक वो भी था कल्प्रिट। हाँ जी जैन, किधर हैं आप? सर इन्होंने मजाक बनाया है, जब पूरा चैप्टर हो जाता है आखिर में कहते हैं नहीं समझ आया। जैन कैन यू हियर मी? मैं जैन से सुनना चाहता हूँ, उसका माइक ही बेचारे का कनेक्टेड नहीं शो हो रहा। चलें जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट इज इन प्रैक्टिस अ फेरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट। जनरली जो कैपेसिटर होता है ना वो माइक्रो फेरेड, पिको फेरेड या नैनो फेरेड के अंदर होता है। और जो बच्चे गलती करते हैं इन क्वेश्चंस में, वो भूल जाते हैं कि कन्वर्जन भी करनी होती है, बस वो वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। तो बेसिकली आपने जो यहाँ पे उसका ध्यान रखना होता है। उसके नीचे सेफ्टी है। ऑब्वियसली मैनी कैपेसिटर्स आर मार्क्ड विद हाईएस्ट सेफ वर्किंग वोल्टेज। इसका मतलब ये है कि आपकी मर्जी नहीं है कि आप कोई भी वोल्टेज लगा दें। अगर आप उस वैल्यू से एक्सीड कर जाते हैं तो कैपेसिटर में लीक, उसकी जो प्लेट्स हैं हो सकता है वो आपस में जुड़ जाएं, चिपक जाएं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो सकता है, तो वो बर्न भी हो सकता है। इट कैन फ्लो हैवीली, इट कैन लीक द करंट बिटवीन देम, सो एंड इट कैन डैमेज द कंपोनेंट एज वेल। तो इसलिए हर एक कैपेसिटर की अपनी एक वर्किंग सेफ वर्किंग वोल्टेज होती है। सर जी ये क्या लिखा बच्चों, हुआ है, कैपेसिटर्स आर यूजुअली मार्क्ड इन? मार्क्ड इन पिको फेरेड, माइक्रो फेरेड और नैनो फेरेड। मतलब इसकी यूनिट बहुत छोटी होती है? जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो कैपेसिटर होता है ना, 1 फेरेड बहुत बड़ा यूनिट होता है। मतलब आपको मैं सिंपल सिंपल में टर्म से कह सकता हूँ कि अगर आपको जो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए या बाइक को स्टार्ट करने के लिए जो बैटरी होती है ना, उसके अंदर जितना चार्ज होता है, अगर आप चाहते हैं कि कैपेसिटर के अंदर भी उतना चार्ज स्टोर हो जाए, तो शायद आपको जो नॉर्मल रूम साइज होता है उतना बड़ा कैपेसिटर बनाना पड़ेगा। तो कैपेसिटर के बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं करता, इसलिए इनको डिवाइसेस में लगाया जाता है टेम्परेरी बेसिस के लिए, जहाँ पे टेम्परेरी चार्ज चाहिए होता है, फिर डिस्चार्ज करना होता है आपको सर्किट के अंदर। और पंखों में भी लगाया जाता है, और इसकी कई और एप्लीकेशंस भी हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप कैपेसिटर की मदद से लगा लें और इसके अंदर एनर्जी स्टोर करके बाद में यूटिलाइज उसको उस तरह कर सकें। बैटरी वाला काम नहीं ले सकते इससे, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत ज्यादा लार्ज एरिया आपको चाहिए। इसलिए ये कंपोनेंट्स में यूज होता है। बहुत स्मॉल चार्ज जहाँ पे चाहिए होता है वहां ये आपको हेल्प आउट कर सकता है। ठीक है बच्चों, एनी डाउट? चलें आगे। चलें जी, अब हमारे पास है जी, इसे कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक, ये छोटी सी एक वो इक्वेशन है, ये लिख लें। उसके बाद एक क्वेश्चन उमर अमीन ने भेजा, वो मैंने करवाना है आप लोगों को मैग्नेटिज्म का। तो सप्लाई डज वर्क टू सेपरेट चार्जेस एंड दिस इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। हमें ये पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो W किसके इक्वल होगा? V Q के इक्वल होगा। तो अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का ग्राफ है, V और Q का ग्राफ है, तो उसका एरिया जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एनर्जी स्टोर के इक्वल होगा। अब मसला ये है कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है वीक स्ट्रेट लाइन। जैसे डीसी बैटरी हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करती है, तो उसमें वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय क्यू, ये आपके पास आ जाता है एनर्जी स्टोर। अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो, ये जो मैंने ग्रीन वाला ग्राफ बनाया यहाँ पे, अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो तब ये फॉर्मूला यूज होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q या W इज इक्वल टू QV।
लेकिन कैपेसिटर के अंदर अगर आप वोल्टेज ज्यादा बढ़ाएंगे तो चार्ज ज्यादा स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एरिया बनता है ये ट्राइंगल बनता है। तो ट्राइंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बनेगा हाफ इंटू क्यू मल्टीप्लाई बाय वी। और अभी हमने पढ़ा है क्यू सी वी के इक्वल है, तो क्यू की जगह अगर आप सी वी रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। और दूसरा क्या आप रिप्लेस कर सकते हैं, आप वोल्टेज को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो वी होगा क्यू अपॉन सी के इक्वल। तो क्यू अपॉन सी को वापस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो बन जाएगा हाफ क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन सी। तो ये बन जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो बेसिकली जिस तरह आपने वो पढ़े में पावर के फॉर्मूले, रेजिस्टर के अंदर पावर डिसिपेटेड थ्रू रेजिस्टर वी आई भी होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है और वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, बिल्कुल इसी तरह एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसके भी 3 फार्मूलाज हैं। हाफ क्यू वी है, हाफ सी वी स्क्वायर है और हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी है। तो यहां तक लिख लें, उसके बाद मैं वो क्वेश्चन करवाने लगा हूं आप लोगों को जो उमर अमीन ने भेजा है क्वेश्चन, राइट। यस सर। सर वोल्टेज किस केस में कांस्टेंट होगी? यार ये जो ऊपर वाला मैंने ग्राफ ना ये वैसे है, आपको पता है वो बैटरी के लिए हम यूज करते हैं ना, W V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये AS में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ये जब बैटरी डीसी बैटरी होती है तो वो कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई कर रही होती है ना, तो ये वहां के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन कैपेसिटर के लिए क्योंकि आप ज्यादा वोल्टेज देंगे तो ज्यादा चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे जो एरिया बनेगा वो कांस्टेंट नहीं होगा ना, मतलब वो रेक्टेंगल नहीं होगा बल्कि वो एक ट्राइंगल की फॉर्म में होगा, राइट। यस सर। चलें बच्चों, ये आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं क्वेश्चन करवाने लगा हूं आप नहीं लोगों सर, को। ओके लिख लिए। सर लिख लिया। चलें जी, अब मैं ये क्वेश्चन एक छोटा सा करवा रहा हूँ, ये उमर अमीन ने ये भेजा हुआ है, इसके ऊपर आप लोग ग्रुप पे भी देख सकते हैं। इसमें ना ये बेसिकली एसी करंट के साथ रिलेटेड है। एसी करंट हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, लेकिन ये क्योंकि हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ लिया है तो उसके साथ लिंक कर सकते हैं। जो इस तरह की इक्वेशन होती है, जो यहाँ पे ऐसे ग्राफ आ रहा होता है, इसको हम कहते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ये आप लोग पढ़ चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो बिल्कुल इसी तरह जो करंट की इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, वो कहता है कि आपने इक्वेशन निकालनी है इंड्यूस ईएमएफ की। तो बेसिकली यहाँ पे ये इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसको साइन से भी शुरू कर सकते हैं, कॉस से भी, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ, पीछे दोनों आंसर होने चाहिए क्योंकि वो दोनों ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं साइनोसाइडल वेव को। अब आपको ना वी नॉट निकालना है। वी नॉट मैक्सिमम वोल्टेज है। इसने यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने सीआरओ की सेटिंग दी हुई है। उसने कहा है कि वाई गेन इज 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1 मिली वोल्ट्स को। तो आप अगर आप ये जो इक्वेशन देखें तो यहाँ पे अब इसको रीड करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ये आप देख लें कितने मिली वोल्ट्स बनते हैं। यहाँ से जो लाइन आपके पास आ रही है ना ये वाली, इसका सेंटर देख लें, यहाँ देख लें कितने सेंटीमीटर बनते हैं। तो उधर से यूनिटरी मेथड से आप वोल्टेज निकाल लें तो ये वी नॉट आपके पास आ जाएगा, जो भी वी नॉट की वैल्यू है। उसके बाद आपको ओमेगा चाहिए। ओमेगा निकालने का फॉर्मूला है, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी। तो आपको टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा।
अब टाइम पीरियड का मतलब ये है कि वेव आपकी अगर टॉप से टॉप यहाँ से यहाँ शुरू हुई है तो ये टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सीआरओ में जो एक्स एक्सेस होता है ना वो टाइम एक्सेस होता है। तो अब उसके लिए वाई गेन सेटिंग आपको यूज करनी पड़ेगी। उसने कहा वाई गेन सेटिंग है 0.5 मिली सेकेंड, तो 0.5 इंटू 10⁻³ भी करना है, क्योंकि मिली सेकेंड को चेंज करना है हमने सेकंड्स में, वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करती है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें कितने सेंटीमीटर बनते हैं, वो सेंटीमीटर, और ये आपके पास एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से टाइम पीरियड निकला, टाइम पीरियड से ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा को आप यहाँ पे वापस प्लेस करेंगे। उमर अमीन बात समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई है यार आप उमर अमीन है, चलें ओके, उमर ने कह दिया कि उसको समझ आ गई है। ओके बच्चों, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेसन। और जहां पे कोई चीज नहीं समझ आई मुझे उसी जगह पे रोकें प्लीज, ये वाला काम ना करें कि एंड में बोलें कि चैप्टर समझ नहीं आया। ये और क्वेश्चंस प्लीज शुरू कर दें। कई लोगों ने बुक्स ली हुई है, कई लोगों ने बुक्स नहीं ली हुई। जिन्होंने बुक नहीं भी ली कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नेट से उठाएं कोई भी पेपर, क्योंकि A2 के अंदर ये कोई कहानी नहीं है कि जी क्वेश्चन नहीं होगा। कोई भी पेपर खोलेंगे ना उसमें से क्वेश्चन निकल आएगा। मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन हर पेपर में, हर टॉपिक में से क्वेश्चन आया हुआ है। आप कोई भी रैंडम पेपर खोलें, मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन निकालें, हमने पीछे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी है वो करें, मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाया है वो करें। उससे पहले आपको सर करवा चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने मेरे साथ किया, ग्रेविटेशनल फील्ड सर करवा चुके हैं, सर्कुलर मोशन उसके क्वेश्चन देखें। सर्कुलर मोशन जो है वो आपको पता मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिलके आता है। तो ये क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोगों का आगे अल्लाह करे कि रिजल्ट अच्छा आ जाए, कोई इज्जत आप मेरी रख लें और कुछ आप लोगों की इज्जत पेरेंट्स के आगे रह जाए। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।